चाहेंगे जैसे ही पता चला है अजीत पवार आज जो पार्टी का नया ऑफिस है, दफ्तर है अजीत एनसीपी का, उसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं 11:30-12 के लगभग। वो दावा हमेशा कर रहे हैं कि एनसीपी मींस अजीत पवार की जो पार्टी है वो एनसीपी है, बट वो ये भी कह रहे हैं कि नेशनल प्रेसिडेंट शरद पवार है। देखिए, अजीत दादा को हक है, जो कहना है उनको कहने दीजिए। बात यह है कि आदरणीय शरद पवार साहब, हमारे जो अध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये पार्टी मेरी है, ये लोग मेरे हैं। ये गुट जो छोड़कर गया है, टेक्निकली भी उनके पास कोई वैलिडिटी नहीं है। आप बताइए कि बार बार ये कहते हैं हमारे पास 35 आमदार है, विधायक हमारे साथ है। अगर वो 35 का आंकड़ा दे रहे तो शायद उनके पास उनका नाम भी होगा ना, क्यों? नामों के बिना तो आंकड़े तो नहीं आ सकते। तो वो नाम भी जाहिर कर दे, देश को बता दे, लोगों को बता दे कि ये 35 लोग जो है हमारे साथ में है, लेकिन वो बता नहीं रहे। देखिए, कायदा और नियम के अनुसार 2/3 2/3 मेजॉरिटी उनको चाहिए। अगर है तो दिखाइए। 36 तो चाहिए ना, 36 लोग चाहिए, कहाँ है? ऐसे पार्टी का ऑफिस अलग से बनाना है, वो भी एनसीपी के नाम से ही। दिल्ली में भी हम दी गई, वहां पे भी प्रफुल्ल पटेल के समर्थक आ गए। तो ये मतलब अलग से ऑफिस तुरंत इंस्टेंट करना, और वो बोल रहे हैं कि हम ही एनसीपी हैं, हम ही। ये उन्हें सोचना पड़ेगा ना। देखिए, आदरणीय प्रफुल्ल, मैं आदरणीय कह रहा हूं क्योंकि वो हमारे नेता रह चुके हैं, प्रफुल्ल पटेल साहब। अजीत दादा ये परिपक्व राजनीतिक है, उनको कायदा कानून अच्छी तरह पता है, और पता होने के बाद भी अगर इस तरह की बातें करते हैं तो फिर हम क्या कहें? क्योंकि आप देखिए, संविधान के हिसाब से, हमारे 10th शेड्यूल के हिसाब से, एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से, हमारे पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये कुछ भी चीज नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, हमारे अध्यक्ष जो है आदरणीय शरद पवार साहब, उन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त किया है क्या? कल कार्य अध्यक्ष ने महाराष्ट्र प्रदेश के लेटर हेड पे कुछ लोगों को नियुक्त किया है, तो वैलिडिटी कहाँ होगी? But yesterday Praful Patel stated that Mr. Pawar's any decision Mr. Pawar takes is not applicable to us. How do you react to this? Well, that's what I'm trying to say. A man of Mr. Praful Patel's stature, intelligence and knowledge is saying that the president's appointments or president's letter is invalid, but the working president's letters are valid. In that case, Mrs. Supriya Sule is also a working president. She's also returned those letters, so her letter also stands valid. So, thing is, you know what? This is digression. Trying to distort the whole thing so that people get confused. But I want to tell the people of Maharashtra and India and Mumbai that there are laws in place. There's the anti-defection law. There's the 10th schedule. All these things, the minute they took oath, they've done anti-party activities. Once they do anti-party activity, they stand to get disqualified from being member of Legislative Assembly. Are you taking legal consent also? Because yesterday we saw that some of the legal team visited Silver Oak. See, a lot of things will start now. They are doing certain things. They are throwing legalities on us. So we have to do our things. So this is a process now. The process has begun. What they do, we'll also do. We have to follow it up, because at the end of the day, the Nationalist Congress Party is Mr. Sharad Pawar. The clock symbol is Mr. Sharad Pawar, and he is still the active president of the party. So the party is, under the president, and the president of the Nationalist Congress Party, NCP, is Mr. Sharad Pawar. How do you see there are severe appointments being done from Ajit Pawar's side? They have made they have changed. In fact, Jayant Patil has been replaced by this Sunil Tatkare as the state president. And how do you see the overall the situation is going on in the political parties, specifically talking about the NCP scheme? Doesn't it sound silly that when there is a president who's active, he does not give appointments? A working president on the letterhead, a working president, national president, working president, on a Maharashtra state letterhead gives appointment. What is the validity? Where is it valid? Explain this to me. Even a common man who doesn't know too much politics or technicalities or laws will tell you that the president does the appointment. And where is the president's letterhead? Where is the working president's letterhead? So all these things now will come into play in the future, and these technicalities will be thrown upon all of us. We are ready to face it. Are you going to file any application with the Election Commission of India also? All these, the symbol of the party. All the party symbol is with Nationalist Congress Party. The president of the Nationalist Congress Party is Mr. Sharad Pawar. But they believe that they can believe whatever they want to believe. Tomorrow they'll believe that they are the Prime Minister of India. So will BJP allow them to believe that they are Prime Minister of India? They will not allow, no? But Mr. Patel has said that Sharad Pawar is our guru. Well, everybody has a guru.
And that's the question. If somebody calls anybody Guru on the day of Guru Purnima, when you मैं हिंदी में कहना चाहूंगा कि अपने गुरु जो है गुरु पूर्णिमा के दिन उनके पैर छूकर उनकी आशीर्वाद लेते हैं हम लोग, मैं भी लेता हूं मेरे गुरु का, और उसी दिन गुरु को धोखा दिया, ये तो सवाल है ना। अगर आप किसी को अपना गुरु मानते हो और गुरु पूर्णिमा के दिन ही उनको धोखा देते हो तो इसके बाद कुछ कहने को रहा ही नहीं। तो सर, इलेक्शन कमीशन में लीगली देखा जाए तो किस तरह से आप तैयार हो रहे हैं बैटल को फाइट करने के लिए? नहीं, लीगली देखा जाए या फिर इलेक्शन कमीशन के पास आप जाएंगे जहां तक पार्टी की जो चिन्ह है उसको लेकर? देखिए, जो लीगैलिटीज है हम फॉलो करेंगे, और काफी सारे पत्ते सब आपके सामने खुला करके तो मतलब नहीं ना, जो होना है प्रोसेस हो तो होते रहेगा। क्योंकि देखिए, हम न्याय में मानते हैं, हम कायदा कानून में मानते हैं, इलेक्शन कमीशन का कायदा हो या हमारे देश का कायदा कानून हो, जो भी है उसका हम पालन करेंगे और उस हिसाब से हम चलेंगे। उनका ये भी कहना है कि शरद पवार जो निर्णय लेते हैं वो हम पे लागू नहीं होते। बाकायदा इसी के मद्देनजर उन्होंने जयंत पाटिल और जो जितेंद्र आव्हाड हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने की एप्लीकेशन स्पीकर को लगाई है। देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिव है, शरद पवार साहब वो निर्णय लेंगे, उनका लेटर हेड जो है वो इस्तेमाल होता है। यहाँ वर्किंग प्रेसिडेंट कैसे किसी को निकाल सकते हैं या चुन सकते हैं? और देखिए ना कि लेटर हेड भी कहाँ का है, महाराष्ट्र प्रदेश का लेटर हेड है, वहाँ पर नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट दे रहे, तो ये टेक्निकल चीजें तो आएंगी और उससे हम सामना करेंगे। बोल रहे हैं कि 40 एमएलए का सपोर्ट है उनके पास अभी एट प्रेजेंट। देखिए, 40 का सपोर्ट है तो दिखा दीजिए ना, नाम बता दीजिए, क्यों छुपा रहे हैं? कल 5 तारीख है, 5 तारीख को आपने भी शरद पवार जी ने भी मीटिंग बुलाई है, उनकी भी मीटिंग है 5 तारीख को, तो कहीं ना कहीं 5 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा लगता है आपको? आप आइए, देख लीजिए, अपने आंखों से देख लीजिए। हमने हमारे लोगों को बुलाया और सब 5 तारीख जो कल है 1 बजे YB चौहान प्रतिष्ठान मुंबई में जो है वहां पर लोग आने वाले, आप भी आ जाइए। अभी आइडियोलॉजी की बात कर ले तो एनसीपी की आइडियोलॉजी हमेशा से अलग हुई है, और अजीत पवार और उनके साथ जो कुछ एमपीस और एमएलएस हैं वो कह रहे हैं कि एनसीपी वो है, तो उनकी आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट होगी, तीनों पार्टी एक साथ आएगी, किसका करता धरता मानते हैं आप? देखिए, आइडियोलॉजी की बात करें तो 2 जुलाई के पहले यही लोग जो थे जो बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे थे, बीजेपी जो कर रही उसका गलत है बता रहे थे। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, कुछ 4-5 दिन पहले ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी किसी मंच से राष्ट्रवादी कांग्रेस कितनी भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट है और कितना भ्रष्टाचार किया, 70,000 करोड़, एक लंबी फहरिस्त जो उनके पास थी बता रहे थे। और उस समय हमारे आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब, अजीत दादाजी, ये सब राष्ट्रवादी में थे, तो वो उस समय उनको भ्रष्ट बता रहे थे। और आज वही भ्रष्ट लोगों को लेकर महाराष्ट्र में फिर से एक सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, तो नैतिकता, आइडियोलॉजी, ये सब कहाँ गए, वो तो सवाल खड़ा हो जाता है। 9 मंत्रियों ने शपथ ली है कुल एनसीपी के, और आज पहली कैबिनेट है, पोर्टफोलियो बाकायदा अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, आज अटकलें लगाई जा रही है कि आज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्या लगता है? देखिए, ये जो 9 मंत्री नियुक्त किए गए, सबसे पहले तो उन्हें मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ। क्यों देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता जो एकदम त्रास गई है कि ये क्या हो रहा है, उनकी सेवा करना जो है तो कुछ तो करे, बात वो है। लेकिन आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के जो आमदार है, विधायक एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक है, जो सपने संजो रहे थे, जो सोच रहे थे कि हम अभी एक्सपेंशन होगा कैबिनेट का और हम मंत्री बनेंगे, आज बेचारे घर में बैठे हैं, उनको मंत्री पद नहीं मिला है। क्योंकि 9 उनका जो निवाला है, उनका खाना जो है यहाँ तक आया था, वो छीन कर देवेंद्र फडणवीस जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने किसी और को दे दिया, वो भी कैसे, किसी और को इंपोर्ट करके। तो दुख तो ये है कि सहानुभूति है बीजेपी वालों के साथ, एकनाथ शिंदे ग्रुप के, कि जो सपने संजो रहे थे आज उन्हें कुछ नहीं मिला। दूसरी बात, जैसे कि चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा था कि हम भारी सीने पे पत्थर रख के हमने एकनाथ शिंदे जी को सीएम का पोस्ट दिया और देवेंद्र फडणवीस को मंत्री करा, आज वही पत्थर रख के बैठे कहाँ पर बेचारा। तो प्लीज एक्सेप्ट माई सिंपथीज, दैट्स ऑल आई कैन से। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।